4:30 बज गए क्या? Exactly. It's 4:30 and we are going live. Hello Rajesh Mansukani, you're my first person who's joined us live and thank you for always being there. So 4:30 बज चुके हैं और आज हमारे साथ है नासिर. Today with us we have Nasir Khan. Hello Arvind Sadeja. Hello Suraj. And we're just waiting for him to join us because we're going to go really close up with him and know all about his journey. He has done a lot of things, be it theatre, be it ads, be it movies, and also anchoring, hosting, matlab name it, any form of acting, and he's done it all. I've known him since I was a kid and I have seen his journey, and I thought आज का दिन है where we shall let you know all about his journey, about how he's gone about. When I was doing theatre, he helped me a lot with my theatre nervousness. He used to guide me a lot. तो आज आप सब उनसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं and जान सकते हैं. And he's here and let's get connected with Nasir Bhai. Waiting for Khan Nasir to connect. I hope आपकी questions ready है. Wit_Leo Club. Hello. Hello Nasir भाई. 4:30 बज गए. I am good. How are you? And you're like really close up. You have taken a title like really, really seriously. हाँ, अब थोड़ा क्लोजअप से थोड़ा पीछे जाओ. अब सिर्फ टाइटल पे क्लोजअप रहने दो. टेक 2 थोड़ा सा हल्का. Hello, can you hear me? Yeah, I said close up with. No, your voice is cracky. Can't hear you. Rajesh is saying can't hear you. Yeah, you. Yeah, because you come so close. अब थोड़ा दूर जा. दूर 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 दूर. Yes, everyone. So MV Ibrahim is saying Assalamu alaikum. Rizwan is saying hello to you. Hello Aman. So Nasir bhai, how's it going? How's quarantine going? Ramzan कैसा था? Hello Tunita. Are you saying anything, Nasir bhai? Because we can't hear you. We are No. Can you hear me completely. now? We've lost you. We can only see you. No sound? Now, oh yes, can hear you now. You just said no. Now we can hear you. Hello people, can you all hear Nasir bhai? Please give a thumbs up if you all can hear. Yes, yes, yes. I think we can, but थोड़ा lagging चल रहा है. No, now we can hear you. We can hear you. We can hear you. Hello everyone. I'm sorry, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, बट क्या करिए, आप तो जानते ही हैं इंटरनेट के डिवाइन टाइमिंग. कभी कभी इंटरनेट बराबर नहीं चलता. यस, आई थिंक वी कैन हियर यू. थोड़ा नेटवर्क इशू है, बट हेलो नासिर भाई, वेलकम बैक ऑन क्लोज अप विद नासिर खान. और अब हम करेंगे आपसे थोड़े बचे कुचे सवाल हमारे नेक्स्ट 1 घंटे में. क्या आप तैयार हैं? You, my dear, keep going and coming back. You go गायब. I think there's an issue with your network. Somehow you are अच्छा, lagging. It's not the मेरे पे डाल network, दो. it's you. As always. ठीक है.
It's okay. Is it okay now? So Nasir bhai, tell हाँ us. बोलो. I think it is okay, but you know it's not as good as it should be. I think आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, तो आपकी इंटरनेट is giving up on me. हाँ, I think so. I think so too. Acha Nasir bhai, come on, tell us how did you start your journey of acting? I mean, obviously it's in the family and हाँ. all that we know, but how did you start? I started out with ads. मुझे एक फोन आया था कि भाई आज क्या कर रहे हो, तो आई सेड मैं आज घर पे हूँ. तो उन्होंने कहा हम मडालिन में शूटिंग कर रहे हैं एक एड, तो आप आओगे क्या. एक क्लोजअप का शॉट है. तो ऐसे मडालिन कौन जाएगा यार, तो आपको 5,000 रुपए देंगे हम लोग. तो सर 5,000 रुपए देंगे तो मैं आ जाऊंगा. सो आई वेंट टू मड आइलैंड, डिड वन क्लोजअप एंड वो जो एड थी वो आयोडेक्स की एड थी, और उसे डायरेक्ट कर रहे थे प्रहलाद कक्कड़. कैन यू हियर Oh मी? wow. या. सो Yes, प्रहलाद that कक्कड़ Prahlad was Kakkar was directing it. yeah, he was directing that. So he was very impressed. So he said कि I'm shooting 3 more ads this month and you're doing all of them, uh, Halls, Close Up and Pepsi. So I said okay. Oh So wow. that's how I got Halls, Close Up and Pepsi. जिसमें से Close Up का जो मेरा ad था, that became very very popular. It was me and Amrita Arora where we are singing and dancing, and that oh Salim, oh Anarkali, thank you for this Kali. उस टाइप का कुछ ऐड था. एंड देन फ्रॉम देयर एड स्टार्टेड. फिर बिकॉज मैं बहुत सारे एड्स करता था, एंड आई यूज्ड टू लाइक टू डब फॉर माय ओन एड्स, बिकॉज मेरी जो आवाज है वो जी हाँ भाई और बहनों आप यहाँ पर उतनी हैवी वाली आवाज नहीं है. एंड एवरीबडी वांट लाइक अ हैवी बेस वॉइस इन एड्स. सो आई सेड नो भाई, मेरी आवाज जैसी है मैं खुद अपनी डबिंग करूंगा. सो आई स्टार्टेड डबिंग माई ओन एड्स. वहां से फिर मुझे एड्स की डबिंग के काम मिले. Where you would only उस dub, like you wouldn't be a part या of the video, but you would only नो dub. नो ओनली डब. देन So which आई was the गॉट टू first डब. ad that you dubbed, like where you were आई not the डोंट आई model, डोंट but you just dubbed? आई डोंट नो. आई डोंट यही होता है ना, जब इतना काम कर लो कहाँ चीजें याद रहती हैं. नो. नहीं. देन वहां से आई गॉट टू डब फॉर कार्टून्स. सो आई Like गॉट animated सिलेक्टेड voice फॉर types. animated. Disney was doing Lion King, so they selected me for Lion King. But because of some Elton John copyright issue, that film was not dubbed at that time. So then they took me for Aladdin. So what Aladdin used to come in the evening on TV, जो कार्टून थी तो उसमें अलादीन की मेरी आवाज है हिंदी में. ये अभी फिलहाल ये जो अलादीन सब आपने डब किया था, अभी since a lot of old things are coming back on OTT, is it there anywhere on OTT that we can go and watch Yeah, it should again? be there. It should be there. It should be there. This is a very famous series. Very famous series. A lot How of was children were really it? crazy after it. How was it dubbing for an animated thing? Like, how is it different when, because see, when you're dubbing something which is your own thing, where you've acted, obviously it comes very naturally because you've performed that. But how is dubbing different, and especially when it is for animation? See, उसमें ऐसा था ना, उन दिनों there used to not be so much. It had just started out. So everybody was like कि कैसे होता है, कैसे करेंगे. It was a lot of trial and error, a lot of learning. And it was great fun. Great fun, मतलब great fun, because अलादीन की सीरीज इतनी एक्शन भरी होती थी, इतना चीखना चिल्लाना, जीनी के पीछे भागना, कालीन के ऊपर जंप मारना, जीनी है, वो सब दिन भर वही सब चलता था. So the whole series of Aladdin is what I dubbed. It was like I said, I learned a lot as an actor. Then उसके बाद then when I started films and फिर वहां Wait, डबिंग wait, करनी wait, होती wait, थी तो wait. मिडिल. Dubbing के एक मिनट. इसके पहले आप आगे जाओ डबिंग के लिए. If somebody wants to get into dubbing,
what are the few quick tips you can give them now in quarantine that they can do? Like, how can they go about just trying to experiment with their voice and whatever? See, now with mobile phone and technologies, you can download scenes. आप घर में बैठो, आप ये हेडफोन लगाओ, आप सीन चलाओ, फोन में रिकॉर्ड करो. It's so easy. You can see it in the moving thing and do it. And like I'm saying, dubbing is an art. It is a technique. It is not like acting. डबिंग एक ऐसी चीज है, आप इसको सीख सकते हो, आप इसको कल्टिवेट कर सकते हो और आप इसमें बेटर हो सकते हो. बिकॉज इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये कौन सा फ्रेम है एंड कब शुरू करना है एंड कैसे करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है. तो आप जितना करोगे ना, आप उतना उसमें बेटर हो जाओगे. एंड इट इज समथिंग you can definitely learn at home sitting today with the technologies in the mobile phones जो है. definitely acting जैसा नहीं, acting तो कोई भी कर सकता है. नहीं. एक्टिंग का क्या है बेटा, एक्टिंग में किस्मत है तो आप बन गए एक्टर, बाकी क्या है. एक्टिंग आती किसको है, हु इज टू सेट द पैरामीटर के ये अच्छी एक्टिंग है, ये बुरी एक्टिंग है. जो चल गया वो चल गया, वो स्टार बन गया, वो काम कर रहा है. Are there any voice modulation exercises that you would suggest to everyone online? Because there's somebody who's asking कि कोई voice modulation exercise or techniques that you can suggest to him, please. अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं ये सब चीजों में पढ़ा नहीं हूँ, ना मुझे पता है. मैं क्या बोलते हैं, ये जो एक्सरसाइजेज होती है जैसे आप करते हो थिएटर अनंत महादेवन के साथ, और क्या नाम है भरत डबोलकर के साथ, जो इतनी सारी एक्सरसाइजेज वर्कशॉप्स करवाते, मेरे से कुछ नहीं. डायलॉग याद करो, मार्क पे आओ, बोलो, घर जाओ. But you know, I have to tell everyone this, that when I was doing That's My Girl, it was my first theater debut and I did a lot of things, but the nervousness was too much. और नासिर भाई के साथ I met him at a coffee shop. होता है, नासिर भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है. And he just told me one thing कि तू जो करेगी वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा. तो प्लीज जा, सिर्फ अपनी लाइन याद रख, like you said right now. जा अपना 100% दे और निकल जा. एंड he said that so Exactly. conveniently कि उसके बाद से I was like okay, सब मैं कर सकती हूँ. इट्स वेरी सिंपल ना. सी, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, जब आप एक्टिंग कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप एक गलती ही करोगे ना, लाइन ही भूलोगे, डायलॉग ही भूलोगे, किसी की जान थोड़ी लोगे. तो देयर इज नो क्राइम दैट इज बीइंग कमिटेड. इट्स जस्ट कि अरे ये डायलॉग भूल गया. हाँ, फिल्म में, टेलीविजन में यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप उसको रीटेक करो. थिएटर में नहीं होता. क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो. लोग बोलेंगे ही इज अ बैड एक्टर, शी इज अ बैड एक्ट्रेस, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपकी किस्मत में है तो फिर भी लोग आके आपको साइन करेंगे. एंड होते nothing succeeds like success. Like I'm saying, there are a lot of successful actors, but doesn't mean that they are good actors. They're successful actors. They are brands. For a lot of people, पुराने जमाने से हॉलीवुड में, दुनिया भर में है, सबके अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं. आप देखो आप कहाँ फिट होते हो. आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को इतना आता है, मैं इतना कर सकता हूँ. It's as simple as that. So to the person who asked us about techniques, I think फिलहाल जो आपको करना चाहिए, like Nasir bhai said, take a scene, try to do it, and the more you do it, you'll understand the skill that you like and how you can modify it. Some painting maybe कर सकते हो. Try and experiment, and you'll know what to do. And there are so many क्या बोलते हैं exercises on YouTube that people have put. There are on media. इतने सारे, बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनको आता है, तो आप उनके वीडियोस देखिए, उनसे सीखिए. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. मुझे अगर मैं बोलूं कि ये करो, दिन में गर्म पानी से गरारा करो, एंड वो सब मुझे कुछ नहीं आता भाई. तो नासिर भाई ऐड हो गई, डबिंग हो गई, then you also do theater, and I am a big fan of your comic timing even on the stage. So theater कैसे हुआ? Which was the first play? How did theater start? थिएटर भी ऐसी हुआ मेरा. कैसे हुआ? और मेरा जो
और मेरा जो पहला प्ले था उसमें मैंने कुछ 6 या 7 अलग अलग कैरेक्टर्स किए थे। और मैंने इसलिए किया था बिकॉज लोग बोलते कि थिएटर बहुत डिफिकल्ट है यार। तो मैं बोले कितना डिफिकल्ट होगा यार, इसमें क्या क्या उखाड़ना है या क्या निकालना है या क्या खोदना है, क्या है उसमें, मैं भी तो जरा देखूं। और कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, ये जो कुछ आपने भी ऐसे मुझे जब वो नहीं। कॉफी शॉप में बोला था ना, कुछ भी नहीं है, द स्माइल ऑफ योर्स एंड देन द वे यू सेड कुछ नहीं है सता, जा कर, अरे अच्छा इतना कन्वीनियंट है, चलो कर लेते हैं। तो किया ना तुमने, कितना सारा किया ना उसके बाद। अभी तो कोई लाइव भी कर रही हो, तो कहीं शल है माथे पे, कहीं टेंशन है, कहीं पसीना आ रहा है, कुछ नहीं, बिंदास सीधा 428 को हेडफोन लगाया, माइक चेक किया एंड 430 लाइव। तो ये थिएटर ही तो है, प्ले ही तो है। हाँ, वन टेक, 4:30 to Yeah, 4:30। yeah. फिर जो ग्लिच हुआ, माइक गिरा, जो हुआ क्या, संभाल लो। संभालो, आगे बढ़। एंड दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ ऑल्सो। आगे बढ़ते रहो यार, आगे बढ़ते रहो। गिरना पड़ना इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर आपको अपने घर से कहीं भी जाना है, अगर आपको अपने दोस्त के घर पे जाना है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे 6 स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे 4 सिग्नल होंगे, इतना ट्रैफिक होगा। बट आपको आपका डेस्टिनेशन पता है कि मुझे फलाना आदमी, मुझे श्वेता के पास जाना है, मुझे श्वेता के घर पे जाना है। तो मुझे पता है ना कि यहाँ से रास्ता कैसे है, but I will cover that journey because I want to come to that destination. So same way with life, we fall, we trip, हमको पता है यहाँ नो एंट्री है, यहाँ ऐसा है। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। नहीं लेने का। खुश Yes, रहो that यार, is खुश always your रहो, mantra. मस्त Stress रहो। नहीं लेने का, मस्त रहो। That is something I दे do दो भले, usually. दे दे दो किसी को, लो खुद मत मस्त। लो। So, do you remember the first play that you did? What was the name? कि अब इतनी हंगामा चीजें कि याद नहीं है। हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। Where you play 6 to योर 7 नेट इज characters. गोइंग। My net is not going. Your net is हेलो, going. Your योर net is नेट इज going. गोइंग। Your net is going. माय Your नेट इज net is going. Your net is going. आई My एम net is not आई एम going. आई एम नेटलिस। You are netless, but the net आई is एम still going. नेटलिस। सो नो, माय फर्स्ट प्ले वाज हंगामा हो गया। सिद्धार्थ रंदेरिया करके एक एक्टर है जो गुजरात थिएटर के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। आई वाज वेरी वेरी लकी कि जब मैंने पहली बार थिएटर किया, मैंने उनके साथ किया। एंड लाइक आई सेड, मेरे कुछ 6-7 कैरेक्टर्स थे। ही वाज प्लेइंग अ हस्बैंड, शोमा आनंद वाज हिज वाइफ। तो मैं सूत्रधार था जो मैं आके प्ले को ओपन करता था। और जैसे ही ओपन करने के बाद आई यूज्ड टू गो रनिंग, आई यूज्ड टू ड्रेस अप एज हिज मदर Oh, okay. एंड आई यूज्ड टू कम ऑन स्टेज एज हिज मदर, एज हिज ओल्ड मदर, जो कुछ 70-80 साल की बूढ़ी अम्मा थी। मैं आके फिर वो बूढ़ी औरत की एक्टिंग करता था, फिर वहां से जाता था पानी लेने के लिए किचन में, फिर वहां से कपड़े चेंज करके फिर उस प्ले में सिद्धार्थ रंदेरे का एक दादा था। तो दादा की फोटो टंगी हुई थी स्टेज पे, तो फोटो फ्रेम में मेरा चेहरा था। So then I used to go in the back. I used to wear the dadi, mood, chashma, topi, and remove that frame and put my head out and start dialogues with him from stage as an old man. Oh, wow. Then again, close it, remove that, and come out as the old lady, and then do my dialogue. Then exit, then come out as a सूत्रधार के ये पहला एक्ट था, अब चलिए दूसरे सीन में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। Then I used to come as a सरदार जी, I used to come as a Sindhi, I used to come as various characters. You know, And even lately, हाँ, before quarantine, you did a play which again had a lot of comic timing. हाँ. Where you were playing Darling, the police inspector. once plays don't have a comic timing, actors have a comic time. हाँ, correct. Noted. हाँ, तो कुछ प्ले में कोई कॉमिक टाइमिंग नहीं होती, आपकी टाइमिंग होती है जो आप प्ले में करते हो। So, कैसा था playing so many characters in one play and each one of them is different? लाइक आई सेड, मैंने जब
थिएटर किया मैंने इसीलिए किया कि लोग बोलते हैं कि इसमें इतना डिफिकल्ट, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है भाई, क्या है इसमें। सो मुझे बहुत सारे प्लेस के ऑफर्स आते थे, मैं ऑलवेज मना करता था, बट जब ये आया ना कि इसमें 6-7 कैरेक्टर्स है, अरे आप सोचो, सिद्धार्थ रंधे, अगर आप उनका नाम देखेंगे या जितने भी अगर यहाँ पर कोई गुजराती लोग हैं, वो गुजराती थिएटर के बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े, ही इज वेरी वेरी बिग। इट्स लाइक you standing directly in front of Bachchan Saab or in front of Dilip Kumar Saab or Al Pacino or Robert De Niro or Meryl Streep. Wow. Imagine if you as a Shweta have to do something with Meryl Streep where you have to play 7-8 characters. So how will you feel? Yeah, who would want to say no? क्या Meryl Streep के सामने मैं क्या करूंगी? तो मेरा वही था कि अगर मुझे इतने बड़े कलाकार के सामने इतने सारे कैरेक्टर्स करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे भी तो पता चले कि मुझ में या ये थिएटर में कितना दम है। कोई टक्कर का सामने आएगा तो पता चलेगा ना। और वो रिहर्सल्स में और स्टेज पे शो के दौरान मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, एंड इट वाज इनक्रेडिबल। मतलब मैं वो बूढ़ी औरत बन के आता था, ही शुड टेल मी कि नासिर ये करेगा ना, तो इसके बाद में ऐसा एक वो फिशिंग की लाइन होती ना, फिशिंग की लाइन फेंक के ऐसे ऐसे रील करना। ऐसे सिद्धार्थ भाई ये इसमें क्या पंच है, अरे तू करना, तू देखना पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी। एंड पब्लिक यूज्ड टू रिएक्ट बिकॉज ही हैड डन सो मच थिएटर दैट ही न्यू द पल्स ऑफ द ऑडियंस। थिएटर इज व्हाट, आपको नहीं पता कि किस टाइप का ऑडियंस आएगा। You have to go there and see in that split second कि अच्छा ये पब्लिक को ये चाहिए और आप उनको वो देना है। Yeah, I on this have to share something with everyone that this was another tip that had taught me when I was doing theatre was that हर play आपका play same है, आपकी line same है, but आपकी audience हमेशा अलग है। So just because they've not laughed on a certain joke that it always got laughed or does not make that joke wrong or does not you shouldn't get like started कि अरे हंसी कैसे नहीं आई। You continue doing your bit क्योंकि वो उस पे नहीं हंसेंगे, हो सकता है किसी और चीज पे हंसेंगे या और कोई चीज पे इमोशनल होंगे which otherwise somebody has not. So this was another important tip that you had taught me when I was just starting theatre and obviously register है यहाँ पे। हाँ, मुझे वापस से सब री रजिस्टर हो रहा है, मैं तो भूल गया था कहाँ इतने सारे टिप्स देके बैठा हूँ, मैं खुद भूल चुका, मैं सब भूल चुका। All of it is noted with me. जैसे आज I learned एक्टर की कॉमिक टाइमिंग नहीं होती, प्ले की टाइमिंग होती है। बेटा प्ले की नहीं होती, एक्टर की होती है। उल्टा बोल रही है। सही है, वेरी गुड। इसको बोलते हैं टाइमिंग। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, वापस रिपीट करो, किसकी होती है, एक्टर की होती है, प्ले की होती है? एक्टर की टाइमिंग होती, प्ले की टाइमिंग नहीं होती। तो मैंने वही तो बोला था जब हम लोग नहीं एक्टर की होती है, प्ले की होती है। यू सेड के प्ले की टाइमिंग होती है। एक्ट क्या, एक कॉमेडी प्ले था उसमें प्ले की क्या टाइमिंग थी? प्ले की कहाँ से टाइमिंग आएगी? प्ले का तो टाइम होता है आ जाएंगे 7 बजे 8 बजे 6 बजे, उतनी टाइमिंग होती प्ले की बस। बाकी एक्टर का काम होता है। एक्टर की टाइमिंग प्ले की नहीं होती, प्ले की टाइमिंग होती है आज रात को 8 बजे रंग शारदा में, इतनी टाइमिंग होती है। जैसे हमारी सलाइट की टाइमिंग हुई 4:30 बजे, उसके अलावा नाज़र भाई की टाइमिंग थी जस्ट मेड मी लाफ। करेक्ट। एक और चीज सीखने को मिल गया, एक और चीज मुझे सबसे सीखने को मिल गई एट माय कॉस्ट। गुड। Okay, Nasir bhai. So, be it play and everything, but there's this one play that I really love. You remember that play where you played the cop and कौन था ये आदमी? हाँ. Making you say. So please a line बोलो हमारे audience। ए आदमी कौन है? चुलबुल चैटर्जी, इंस्पेक्टर। So whenever I meet Nasir bhai, I keep telling him to say this line. I don't know why. Every time I hear that line, I start laughing. So tell us about this play. ए आदमी कौन है?
परितोष पेंटर्स प्ले, 3 बंदर होटल के अंदर, कॉमेडी प्ले अगेन एंड अगेन, अ ग्रेट टीम ऑफ एक्टर्स. तो जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो तो यू गेट टू होन योर ओन स्किल्स. आप ब्रशअप करते हो, आप सीखते हो, पब्लिक से सीखते हो, एक्टर्स से सीखते हो, स्टेज पे सीखते हो, रिहर्सल्स के दौरान सीखते हो. एंड थिएटर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप है, इट शुड नॉट बी के यार श्वेता ने मेरी लाइन खा गई, अब मैं इसको आगे दिखाऊंगा. वो अगर मेरी लाइन खाने से अगर परफॉर्मेंस बेटर होता है तो श्वेता ले लो मेरी लाइन. थिएटर इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. इवन द पब्लिक दैट इज देयर, they have come to take, so the more you give them they will take. अगर आप बोलोगे नहीं यार ये मेरी डायल लाइन है मैं दूंगा नहीं, तो you can't be selfish on stage. You have to go out there and deliver to the audience. Yes, noted that too. This theater is not about being selfish. Go out and give it to the audience. Yeah, That's what they've come for that, na? Absolutely. So Master Bhai, theater हो गया, ads हो गई, dubbing हो गई, and then you obviously did a lot of serials and you are doing a lot of serials. Though there was this one serial that I strongly remember, Wo, which was quite Yeah, a thriller. the horror. And बचपन में just because I had to see you, तो मुझे बहुत डर भी लगता था, but because of you I would watch that serial and it was quite a race back then. So how did the serial journey start? Again, like I'm saying, it just happened. मुझे ads मिले, ads से dubbing मिली, ads की वजह से मुझे music videos मिले. This is the first music I've done video so many you did. music. मेरा पाँव भारी हो गया, मेरा पाँव भारी हो गया. It was a Sonu Nigam song. It was very very big hit. तुम तो बहुत छोटी थी तब. मैं जब आपके सेट पे भी आती थी मैं बहुत छोटी थी. When I come on your set as you. But yeah, I've got to learn a lot from you since then. Even back then when I didn't want to do acting, I would get very happy to see you on screen and get super excited. Arey, nacho bhai. So that song, that music video, then because of that music video, I got television shows. My first was called Saturday Suspense, which was directed by Anurag Basu. वो अनुराग का भी पहला ही डेब्यू था एज अ डायरेक्टर. ही वाज असिस्टिंग राकेश सारंग. Okay. So he did this show with me called Saturday Suspense. And that time Rakesh Sarang was directing a TV show for Manish Goswami on Zee TV called Ashirwad with Govind Namdev, Naveen Nischal and everybody. तो अनुराग ने बोला था कि राकेश सर ये लड़का है अच्छा है, आप देखो इसको. So I did आशीर्वाद. And like I'm saying, सब होते होते हो गया. और मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा, even for you, that when I started आशीर्वाद, बिगिनिंग के 4-6 एपिसोड में मेरे कोई डायलॉग्स ही नहीं थे. मैं सिर्फ सीन में खड़ा होता था, यहाँ वहां मेरा कोई काम नहीं होता था. आई शुड जस्ट स्टैंड कि बड़ा भाई है, इधर खड़े रहो, यहां से देखो, ऐसा करो वैसा करो. तो आई टू गो ऑन द सेट. मेरे ज्यादा कुछ डायलॉग्स होते नहीं थे. गोविंद नामदेव वाज माय फादर. तो ही यूज्ड टू टेल मी कि तू सीन क्यों नहीं पढ़ता है. बस सीन पढ़ू जब मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है. तो ही सेड नहीं, अगर तुम्हारा डायलॉग ना भी हो तो तुम सीन पढ़ो, बिकॉज तुम दूसरों के डायलॉग्स याद करो. जब अच्छी लग रही, बाल बाल मत बनाओ, अच्छी लग रही, नाइस यू आर लुकिंग, डोंट डू ऑल दैट. Thank you. So he told me that you learn the other people's dialogues and do your homework कि ये डायलॉग पे मैं ये रिएक्शन दूंगा, ये डायलॉग पे मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, ये डायलॉग पे मैं ये मूवमेंट करूंगा. Because your reaction, the close-up of your reaction is what the audience will relate to. Okay. अगर दो लोग झगड़े का सीन कर रहे हैं और तीसरा आदमी देख के हंस रहा है और उसके रिएक्शन जाएंगे तो पब्लिक भी हंसेगी. Because they will think it's funny. That is how you project. You understand? अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और अगर कोई टेंशन से देख रहे तो पब्लिक भी, अरे यार ये तो झगड़ा कर रहे, पता नहीं क्या होगा, हंस रहे हैं, झगड़ा कर रहे, क्या तुम लोग ना. So the people are not going to take you seriously. That is how it is projected. That is how it is projected. You understand? So it is the same way. So when I used to go, I used to do all that.
कि दूसरों के डायलॉग्स याद रखो कि ये ऐसे करूंगा। सो फिर मेरे क्लोजेस कटने लगे कि जब बाबूजी ऐसा बोलेंगे ना, नासिर तो तूने वो लुक दिया था वो अच्छा था, उसको वापस कर, तूने यहाँ देखा था वैसा वो अच्छा था, उसको आप। सो मेरे क्लोजेस आने लगे, फिर धीरे धीरे मेरे डायलॉग्स आने लगे, हाँ एंड the work, the show, the character started getting picked up, started getting liked. So it doesn't make a difference. क्या डायलॉग उसके, मेरे तो कोई डायलॉग नहीं, मैं तो खड़ा हूँ। तो बिना डायलॉग के एक्टिंग करना is more difficult than with dialogues. I totally agree. 90%, हाँ, 90% जो एक्टर्स होते हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, मेरे तो कोई डायलॉग नहीं है यार, मैं बीच में ये घुसा दूं क्या, मैं ये बोल दूं क्या, मैं ऐसा कर, मत करो यार। एक सीन है, उसके सीन के टोटल सीक्वेंस को समझो एंड देन से ओके दिस इज माय थिंग एंड आई विल डू दिस, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। और जब आता है तो पब्लिक नोटिस करती है, और जब पब्लिक नोटिस करती है आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाते हो। Noted. Nasir right on. And Richard will agree to that. So true and well said. Yes. Always he gives some amazing tips which have helped me in so many years, and I always call him whenever I have some confusion. Nasir right. इसका क्या करूँ? ये आया, ये करूँ? और मैं जाता हूँ, अरे यार फिर इसका फोन है यार। वो तो है. Please, huh? But I always listen to what you say, and Of I course. follow it. Of course. Like, That's there why is I no love you. doubt about it. You better love me. You don't have a choice. Because I love you too. And you are anyways a bhandar of creativity. Because तो थोड़ा थोड़ा तो इधर बांटना चाहिए ना हम लोगों के लिए. I am always, I तो always say कि आओ सुनो लेके जाओ. So a lot of people are sending their thumbs up, and Payal is saying my two favorite people on the show. Yes, Payal. Even Hi we are Payal, how happy are you? to be on your show. And there is somebody saying, can you sing a song for us? So from all the music videos that you've done, is there any particular song that you can sing for us? नहीं, मुझे गाना आता नहीं. आपको सब आता है? और बाय गॉड मुझे गाना नहीं आता. ऐसा कुछ नहीं मतलब जो आपको नहीं आता है. गाना आता है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई भी जिसको गाना नहीं आता. Exactly. सबको तो गाना वैसे ही आता आप है. कुछ गाना हमारे लिए गा लो, स्पेशली भूपी 25 is saying hello. है ना भूपी? अरे वो भी मेरा फोटो तो निकाल. मेरा भी तो मेरा मैं भी. वही, हाँ. पोस्ट क्वारंटाइन भूपी दो फोटो शूट था, एक नासिर भाई हाँ. का, एक मेरा. चलो पोस्ट क्वारंटाइन के लिए वो हमारे पास है. उस पे रिप्लाई So- नहीं की है भूपी ने. हाँ, गाना सब गाते हैं, सवाल ये है कि कितना अच्छा है या कितना बुरा. But there's no अच्छा Like and I'm बुरा saying. ना. We want to hear it. Especially this अरे person but I don't wants know to how to hear say. it. It's okay. Who तो is sing that for him person? two lines. अभी ऊपर चले गए कौन काफी. कौन? ये हाँ, तो मुझे कौन बताओ है कौन ये सा गाना, आदमी? What कौन is सा it? गाना. He ए said what is it? आदमी कौन है. ये जो I don't know which song आदमी to ये sing. कह रहा है, just sing any nice song, be it dad song, be it your song, just sing one song. यार बेचारा है sad. ऐसा ना करो. सोचने दो ना. आई वुड लाइक इट अगर कोई रिक्वेस्ट करे कि ये गाना गाओ, मुझे चंपी वाला सॉन्ग. गाएंगे, गाना भी गाएंगे. जाने के पहले डेफिनेटली गाना गाऊंगा मैं. ओके I will ये sing a song. प्रॉमिस. नहीं तो अगर, क्योंकि अब अगर मैंने गाना गाया तो पब्लिक वैसे ही चली जाएगी. Okay, Bhupi Singh after lockdown done. Chalo, Nasir bhai, start Done. jogging and get more fit for the Done. photo shoot. Yeah, Yes, even done, Bhupi done, Singh, done. you can sing. I'm also saying he keeps singing all the time. My Pearl Land is also. So people as well want him to sing. Now they'll start sending thumbs up. So we'll make him sing right हाँ. away. नहीं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा 5:30 बजे तक. तो सोच लो क्या चाहिए. 5:30 बजे तक चलेगा ये. मैं जाने ही नहीं दूंगी जब तक टाइम आप नहीं हो. तो सोमी इज लाइक एक्चुअली सोमी थिंग्स. And 26 मिनट और. listen, you can talk all the time. तो आप तो बोलो ही मत हाँ. 26 मिनट और. हाँ. Because you have so much to talk and you have so much to say always. So So you can't take it. ask, आप लोग पूछो, मैं आपको सीधे सीधे जवाब दूंगा. तो मूवी ये क्या कहते हैं, सीरियल्स हो गए, एड्स हो गए, डबिंग हो गई, थिएटर हो गया. And lately, and obviously you've done so many movies. And again you will say वो तो होते होते हो गया. But how is it different? Like all these are very different mediums, you know, like each one of them.
So how was it? What is your experience of every different medium? सी माई थिंग इज अब जैसे थिएटर है. थिएटर इज लाइक बीइंग इन अ ऑटो रिक्शा. टेलीविजन इज लाइक जब आप अपनी खुद की गाड़ी में हो. और फिल्म इज लाइक बीइंग इन अ प्लेन. आप फर्स्ट क्लास में बैठे हो. तो जब आप फर्स्ट क्लास में जा रहे हो, फर्स्ट क्लास की प्लेन में जा रहे हो, तो आप प्रिपेयर्ड होते हो कि मुझे यहाँ ऐसा मिलेगा, इस टाइप का खाना मिलेगा, आई विल गेट ऑल दीज लग्जरीज. जब आप ऑटो में जाते हो तो आपको पता है कि आपको धूल मिट्टी मिलेगी. सो इट इज द सेम वे. सो अगर आप थिएटर कर रहे हो और अगर आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को बहुत लग्जरीज मिलेगी, मुझे अपना मेकअप रूम मिलेगा, स्पॉट बाय होगा, मैं खाना मंगाऊंगा, मैं आराम से लेट जाऊंगा, तो वैसा नहीं होता. थिएटर में आपको खुद काम करना पड़ता है. सेटिंग का काम हो, बैक स्टेज का काम हो, ड्यूरिंग द प्ले काम हो, दूसरे एक्टर्स को रेडी करना या उनके प्रॉप्स तैयार रखना. इट इज लाइक आई सेड, इट इज अ होल डिफरेंट एक्सरसाइज. टेलीविजन में आपको टाइम नहीं मिलता. आपको 9 बजे जाना है, आपको कोई टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का. बिफोर यू कैन गेट रेडी दे आर सेइंग कि सर आ जाओ, सीन रेडी, डायलॉग्स बोलो. अरे डायलॉग अभी तो मिले नहीं. मैं तो 2003 और 4 में जब टेलीविजन का बूम आया था, यू वोंट बिलीव इट श्वेता, जब था ना कि बूम, टीवी हैज हिट द मार्केट, हमने ऐसे ऐसे सीन्स किए हैं. ओके, 9 बजे जाके रेडी होके जब आप सेट पे जाते हो कि सीन क्या है, तो सीन अभी तक आया नहीं. तो क्या करना है सर, आप यहाँ पे खड़े रहकर सिर्फ रिएक्शन दे दो. डायलॉग वो जब आएगा तब बुलवा लेंगे आपसे. तो तो वी शुड रिएक्शन कैसे स्टैंड. दोगे? 3-4 जो रिएक्शन होते हैं, खुशी के, गम के, गुस्से के, और क्या है. टीवी जो 2002 या 3 या 4 में जो टेलीविजन का बूम आया था, जो सास बहू के शोज हिट हुए थे, उसमें रिएक्शन क्या होते हैं? यही होते हैं. नीचे बैठी है, खड़ी हो गई, चली गई, गुस्से में देखा आपने, बस कट सर, अभी आपका रिएक्शन हो गया, अभी मैडम आप आपका रिएक्शन, अभी आपका रिएक्शन, अरे डायलॉग आ गया, डायलॉग आ गया, डायलॉग आ गया. फिर जिसका जो जैसे बारी बारी आप डायलॉग बोलो, और वो लोग फिर एडिटिंग में वो लोग रिएक्शन डालते थे. सो इट वाज लाइक दैट. सो टेलीविजन इज लाइक दैट. फिल्म्स, आपको अपने कैरेक्टर पे काम करने का टाइम मिलता है. आप डायरेक्टर के साथ बैठते हो, राइटर के साथ बैठते हो, योर कॉस्ट्यूम, you go on set, you do that rehearsal, you get into the skin of the character. मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे जोकर पिक्चर में आप वाकिन फिनिक्स को ले लो, आप एल पचिनो को बुलाओ ना यहाँ पे टीवी सीरियल करने के लिए, नहीं कर पाएगा बच्चा. हाँ. डैनियल डे लुइस, रॉबर्ट डिनोरो, काम ही नहीं, इनको समझ ही नहीं आएगा. ओह मैन, डायलॉग नॉट देयर, हाउ टू एक्ट. भैया हमारा ऐसे होता है, बिना डायलॉग के हम लोग एक्टिंग करते हैं. दिन में आपको 18-20 मिनट शूट करना पड़ता है. शूट करोगे तो कल एयर पे जाएगा, परसों एयर पे जाएगा. सो इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस. सो एज एन एक्टर यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई मैं फिल्म की शूटिंग पे हूं, मैं टीवी की शूटिंग पे हूं, मैं क्या बोलते हैं, थिएटर की शूटिंग पे हूं. बट एट द सेम टाइम फिल्म्स जो होती हैं वो डायरेक्टर की मीडियम होती है. एक डायरेक्टर होता है, वो एक कहानी पे काम करता है, वो कैरेक्टर्स को उस तरीके से सोचता है, वो अपने एक्टर्स के साथ बैठता है, एंड ही ब्रिंग्स दैट वर्क आउट ऑफ यू. टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम. तो गिवन डायलॉग्स, इमोशनल सीन्स, रोना धोना, ये वो, उसमें राइटर का कमाल होता है. जब आप थिएटर पे आते हो, सो थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम. एक बार पर्दा खुल गया तो कोई डायरेक्टर को नहीं देखता, सब सिर्फ एक्टर को देखते हैं. तो वहां पे एज एन एक्टर आपकी काबिलियत क्या है, आपकी स्टैंडिंग क्या है, आप कितना कंट्रोल कर रहे हो. वो जो 400-500 की जो पब्लिक है, वो दैट इज योर पावर.
तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज का अपना अलग 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 फ्लेवर है. चाय कैसी है, कॉफी कैसी है, आप चॉकलेट आइसक्रीम भी खाते हो, कभी वेनिला आइसक्रीम भी खाते हो, क्यों? Different, ना? So variety. बट यू वैरायटी. सो यू नो यार, आज चोको चिप हो जाए यार, वो अच्छा लगता है. फील लाइक हैविंग चॉकलेट. और यार आज कुल्फी खाते हैं. सो आपको पता है कुल्फी में डंडी होगी, वो साइकिल पे भैया देगा, जो सुर्री मार के खाना है वो टपकेगी, पता है आपको. तो जस्ट सेम वे, जस्ट कुछ इसमें इतनी सोचने वाली और रॉकेट साइंस वाली बात नहीं. हम सब रोज जिंदगी में हर रोज एक्टिंग करते हैं. So there was a question that came some time back, which even I was about to ask you. That when you have coming from a family of where cinema is so much and dad being a legend. So I'm sure when you started off, there must be a lot of comparison, or it keeps happening. So how did you handle that? Because many a times it's the comparison or all of that people can't handle. So what was it with you? Because dad's been a legend and is a legend, and there's so much. So how did you handle it? नो, आई डोंट हैंडल इट. बिकॉज जब मैंने काम शुरू किया था, मतलब आज तक, आज भी मुझे सोशल मीडिया पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई लिखता, अरे आप जॉनी वॉकर साहब के बेटे हो, हमको तो पता भी नहीं था. एंड आई एम श्योर यहाँ पर भी होंगे कुछ लोग जिनको नहीं पता कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूं. दे डोंट नो my father being the legend that he is, being the actor that he is, and doing so much work. Who does not know Johnny Walker? Everybody knows him. Everybody knows. There is nobody Correct? who does not know and cannot not know. Exactly. मैं भी एज एन इंडिविजुअल एक्टर, मैं भी कुछ 25 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने भी काफी काम किया है. बट कभी वो सिंक नहीं हुआ कि अच्छा ये नासिर जॉनी वॉकर का बेटा है. बिकॉज मैंने कभी बताया नहीं कि मैं नासिर हूं, मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूं. नहीं, बिकॉज मेरा पहले से था और उनका भी पहले से था कि इट इज योर लाइफ. Exactly. यस हेतल, आई ऑल्सो मिस यू. Hi Hetal, how are you? सो यू हैव टू मेक योर ओन मार्क. जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, मतलब आप किस फैमिली से हो या आपके फादर कौन है. एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी खुद की एक छाप बनानी है, अपना खुद का एक मार्क बनाना है. और वो आप तब बनाओगे जब आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. बिकॉज आगे चल के गिरना ही है, और जब गिरोगे तो वो उठाने वाला होगा नहीं, आपको खुद उठना पड़ेगा. So it is like that. So आज भी गिर रहे हैं, मतलब मैं गिर रहा हूँ और उठ रहा हूँ. So it's the same way. It's a whole process. That's true. कुछ समझ में आया कि नहीं? ये मेरे को बाउंसर पहले क्या नहीं सब समझा है, ठीक है? ये आपने मेरे को पहले नहीं समझा है. मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि किसने पूछा था आपने, तो I'm sure you remember I had asked you this question on something, I don't want to mention on what, and you had told me the same thing, and that was before that my girl again, when you were sitting and you hugged me and you had told me this thing. Or that one thing actually changed a lot of things for me in life and made me what I am today. Thanks to you. No, it's you. हाँ, but then that whole thing कि खुद गिर खुद खड़े हो, जो लोग बोलते हैं वो बात अलग है. You are Shweta, just keep it to Shweta, don't think of the other things. So yeah, that I strongly remember. Like today I remember, actor की टाइम नहीं है, play की नहीं, correct? अभी तो सही बोला ना? प्ले का टाइम होता है आज शाम को 7 बजे रंग शारदा में. प्ले का उतना ही टाइम होता है. प्लीज ना, आज रंग शारदा में कुछ नहीं है. पता चला लोग रोड पे निकल गए बोल के कि नाजिर भाई ने बोला था आज 7 बजे. कुछ कहीं नहीं है, जो भी लाइव है ऑनलाइन है, इधर ही है. So Naziर भाई, what are you doing while quarantine? How are you keeping yourself busy? How are you maintaining this beautiful smile of yours, being happy? What are you doing? I am just actually honestly बताऊं, Honestly, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं करोगे.
हाँ निकल भी नहीं नहीं कुछ भी बोलूंगी। कह सकते हैं। नहीं, ऑनेस्टली हमारी जो अपब्रिंगिंग थी वो ऐसी ही थी कि लाइफ को जितना सिंपल रखोगे ना, अपनी लाइफ को जितना सिंपल रखोगे, आप उतने ज्यादा सुखी रहोगे, उतने ज्यादा खुश रहोगे, उतने ज्यादा पीसफुल रहोगे और उतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड रहेगा। दैट वाज माय फादर्स फिलॉसफी एंड दैट इज व्हाट एज पेरेंट्स हमारे माँ बाप ने हमको उस तरीके की परवरिश दी कि खास करके ये जो लाइन है, ये जो इंडस्ट्री है, इतनी चमक धमक है, इतना ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी कुछ ऐसी डार्क वाक भद्दी गंदी नहीं है। रियलिटी इज नॉर्मल। रियलिटी इज नॉर्मल। जैसे ये आदमी है या वो आदमी है, आपकी भी लाइफ वैसी ही है। आप भी वही 6x6 के बेड पे सोते हो, वही दाल चावल रोटी खाते हो, आप कोई हीरे मोती नहीं खाते, वही कपड़े पहनते हो, वही सब चीज करते हो जो सब करते हैं। फर्क यह है कि लोग बोलते हैं हाँ यार ये आया हो, यार वो आई। तो आज ये है, कल कोई और होगा। तो डोंट गेट कॉट इन दैट। सो इट्स ऑलवेज बिन नॉर्मल, इट्स ऑलवेज बिन। अब जैसे लोग, अभी मैं, कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं कभी जिम गया ही नहीं। Yeah, you've मैं always कभी done नहीं जिम jogging गया। on the back road. करेक्ट, वेयर? ऑन द रोड। तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरा जिम तो बंद नहीं हुआ। True. ओके, आई हैव ऑलवेज डन स्किपिंग, आई एम स्टिल डूइंग स्किपिंग। करेक्ट। तो मैं नीचे ही अपना वॉक कर लेता हूँ बंगले में, मैं अब अपनी स्किपिंग कर लेता हूँ। तो जो लोग जिम जाते हैं या क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्स लेते हैं या ये सारी चीजें करते हैं, तो उनको तो असर पड़ा होगा ना। हाँ, because suddenly lifestyle change. तो तो लाइफ की जो स्टाइल है ना वो चेंज हो गई है। लाइफ कभी नहीं चेंज होती। तो आप अपनी लाइफ को वैसे ही रखो ना, सिंपल रखो ना। तो जब चीजें जाएंगी, और सबकी जाती है, एक वक्त पे सबकी जाती है, चाहे वो नॉट, चाहे जो जो फैक्ट है इज द एज, इज आपकी एज, आपका बुढ़ापा, आपका चलना, वो सबको होता है। बड़े से बड़ा कलाकार, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा आदमी दुनिया का बूढ़ा होता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका पोस्चर बदल जाता है, उस यू नो हाउ ही इज चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस। How are you going to handle that change at that time will depend on how you have lived your life. If you have lived your life normally, simply, it won't make a difference. Won't make a difference. Because आप यहां से यहां आओगे, आप यहां से यहां आओगे, बट जहां आपने हाई फ्लाई जिंदगी रखी, तो आपको लगता है यार नो पार्टीज, यार कांट गो आउट, यार नो प्लेस टू गो, नो पब। मैं कभी लाइफ में नहीं गया। आई हैव बीन हैप्पी। देखो पायल के साथ भी मैंने प्ले किया था, पायल ऑल्सो नोज। Hello, Payal. Andrea also saying thumbs up. Yes, Andrea. Hi That's Andrea, great. how are you? So I've always been like this. हाँ, the difference is I cannot go out. मैं रोड पे नहीं जा सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता। मुझे कॉफी पे बट नहीं लेके जा सकते हो क्योंकि अभी क्वारंटाइन हाँ, है, तो दैट यू आर मिसिंग, आई एम हाँ, श्योर। एग्जैक्टली। तो what else besides that? True. That's what I'm saying. So it is, you have to, and that is what this time has shown everybody. Go back to your basics. हम हमने ना बहुत सारी चीजों को, लग्जरी चीजों को अपनी जिंदगी की नेसेसिटी बना दी थी। वो आपको फर्क पता होना चाहिए कि ये लग्जरी है, ये नेसेसिटी नहीं है। इसके बगैर भी आप जी सकते हो। जरूरी नहीं है कि फ्रिज नहीं हो तो आप पानी नहीं पी सकते, या एसी नहीं हो तो आप आप सो जी नहीं नहीं सकते। पाओगे, यू नो। तो Yeah.
That's It's so these things. true. We forgot the difference between luxury and necessity. We kind of made Yeah. majority of our luxuries into necessity, and we're like, "कि बिना तो चलेगा ही नहीं." Yes. Correct. So we have made the luxuries the necessity, और necessities को तो हम भूल ही गए, पता नहीं कहाँ पीछे छोड़ दिए. तो अब जब necessities की बारी आई है, तो आपको लग रहा है कि यार अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं. Absolutely. वाह नासिर भाई, एक और टीचिंग सुपर. देखो मम्मी, देखो क्या क्या सिखा रहा हूं मम्मी. मम्मी ने मम्मी मम्मी ने क्या क्या सीधा सिखा रहा हूं तंत्र मैं. भेज दिया कि अरे हाँ. ये इनकी सुनेगी. अच्छा सिखाते जाओ सिखाते जाओ. मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं. ओके. कितने सारे लोग परेशान है कि बाल नहीं काट सकते, पार्लर नहीं जा सकते, बाल कलर नहीं कर सकते. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, Because you've always loved क्योंकि yourself the way you are. That's something या about you. एंड व्हेन आई हैड टू कलर माय हेयर, मैं वो अपना 110 रुपए की कलर खरीद के मैं खुद ही कलर करता था अपने बाल. आई नेवर वेंट टू द सैलून टू कलर माय हेयर. आई हैव कलर्ड माय हेयर इन माय हाउस बाय माय सेल्फ ऑलवेज. So yeah, didn't make a difference at all. और नहीं, ये कलर सफेद है तो आप देखोगे तो कितना सारा काम मैंने सफेद बाल के साथ भी किया है, कि मैंने सफेद बाल के साथ भी डाले. मुझे थोड़ी ना कुछ छुपाना है. प्रॉब्लम आती है कि मेरे सफेद बाल दिख रहे हैं. Yeah, Shilpi, I agree with you. He's always been so natural, and that's the best part about him. He is just him, always 24/7. That's why he's so amazing. नहीं, वो स्पीकिंग के बारे में बोल रही थी, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बोल रही थी. नहीं स्पीकिंग भी और पर्सनालिटी भी, मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ से. I have seen no change in you, and that's why I always look up to you. And you are one of my favorites. Yeah, because again you have to maintain that simplicity. See, वो भी कह रही है overall. And that's what this pandemic has taught everybody, the basics of life. क्या चीज जरूरी है, क्या होना चाहिए एक्चुअली में. So yeah, even La Patiala is sending a thumbs up and a wave. So wave back to you. And okay, Nasir bhai, quickly I'm going to ask you some questions. First thought that comes to your mind. Favorite movie? फेवरेट Movie. हिंदी इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज Okay, की, कौन favorite से Hindi movie. फेवरेट हिंदी मूवी. अरे बाप, एक्चुअली मुझे फिल्में देखने का शौक है, वो कोई भी लैंग्वेज की. तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल क्वेश्चन. आई लव ऑल मूवीज. आई लव Okay. ऑल मूवीज सीरियसली. Favorite genre of songs that you really enjoy? I know you like all songs, but favorite genre? मुझे जो जो हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स है ना, मस्ती वाले, ऐसे वो रोने धोने वाले. नीला आसमां चांद काय के लिए डिप्रेस्ड हो गए. You like writing. I have read a lot of your poems. Is there any new poem that you've written and you can tell people? Because आधी रात को चांद को देख के आपने बहुत सारे poems लिखे जो मुझे पता है. So is there any new poem that you want to tell people? अच्छा अभी नहीं, बाद में. कुछ कोई पोएम नहीं, कुछ नहीं लिखा मैंने, कुछ Dude, भी नहीं लिखा. dude. सीरियसली. नो नो, आई एम नॉट किडिंग. मैंने कुछ भी नहीं लिखा. I think you should write. You write such beautiful poems and it's been so long. या It's time for you इसी to वही write ना, something. जब आप जिंदगी की भागदौड़ में इतने फंस जाते हो, आपको सोने का टाइम नहीं मिलता, आपको घर पे टाइम नहीं मिलता, आपको दोस्तों के साथ टाइम नहीं मिलता है, सो बिजी रनिंग बिहाइंड द वर्ल्डली थिंग्स, फिर लगता है कि नहीं यार, ये सब चीजों से थोड़ा दूर होके मैं अपनी दुनिया में जाके मैं कुछ एक लिखता हूँ. कुछ एक लिखूं, कुछ थॉट जो मेरे अंदर है वो मैं निकालूं. अभी वही चल रहा है. अभी कोई भागदौड़ है ही नहीं. अभी मैं अपनी दुनिया में खुश हूं, तो मैं क्यों लिखूं. चलो ठीक है. तो जब क्वारंटाइन खत्म होगा तो all you viewers will give you a nice poem written by him because he writes lovely poems. Yes. And I've read all of them and they all have deep thoughtful meaning behind each one of the lines that he writes. That I can vouch for.
तो अब साइन आउट के पहले आपने प्रॉमिस किया था आप गाना गाओगे, तो हाँ, गाने का कौन सा टाइम गाना? आ गया है। तो अब इतना कौन सा टाइम दिया गाना? सोचने के लिए। गाना आ नहीं रहा दिमाग। अच्छा कोई अच्छा डायलॉग मस्त बोल दो, चलो। ढिंचैक वाला गाना, मस्त ढिंचैक वाला गाना। कोई अच्छा डायलॉग बोल दो हमारे लिए साइन आउट के पहले फॉर ऑल ऑफ यू। डायलॉग, वो तो आपको बहुत सारे आते हैं, ठीक है, मैंने अभी गाने से डायलॉग पे मैं ले आई और क्या करूँ। मैं एक बहुत फेमस डायलॉग बोलने वाला हूँ। ओके, आर यू रेडी? वी ऑल आर रेडी। रुको, ये होती है एक्टिंग। दो सरदार, शोले का डायलॉग था ना, जब गब्बर सिंह पूछते कितने आदमी थे, सांबा बोलता है दो सरदार। क्या ये होता है डायलॉग डिलीवरी, ऐसे होता है डायलॉग। जो, अरे यू टोल्ड मी डायलॉग बोलने के लिए, मैंने डायलॉग बोल दिया। तो फेमस कितना, कितनी बड़ी पिक्चर का कितना फेमस डायलॉग है ये। तो कितने महान राइटरों ने लिखा है, सलीम जावेद ने लिखा है डायलॉग, पता है। अब बताओ एक्टर कौन सा था, अब बताओ एक्टर कौन सा था जिसने डायलॉग बोला था दो सरदार? Was it? नो इट वॉज नॉट। It was Viju विजू sir. सवस कालिया, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। दो सरदार। नो, दैट इज नॉट विजू अंकल, I think it was Viju sir. दैट इज सांभा। विजू अंकल वॉज कालिया। अच्छा चलो विजू सर का कोई डायलॉग बोल दो। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। हाँ, विजू अंकल का डायलॉग, सरदार मैंने आपका नमक खाया है। देखा, देगा तो कितने डायलॉग बोल दिया मैंने फ्री में, फ्री कितने सारे डायलॉग बोल दिया मैंने। तीन डायलॉग फ्री में तीन डायलॉग बोले। तीन डायलॉग, कितने बड़े बड़े डायलॉग। नहीं, बड़े बड़े लेसन हमें सिखाया आज आपने। वो डायलॉग अलग, वो लेसन तो बड़े तब होंगे जब आप उन पे अमल करोगे, अगर अमल नहीं करोगे। अभी तक हम कर रहे हैं, हम आगे भी अमल करेंगे। बस। So thank you नासिर भाई for being on a chat. Thank you. Live with us. आपने अपने लाइव सेशन से पूरा लाइव टाइम हमारे लिए भी निकाला. So till then, we shall see you soon and keep watching you live on your other live sessions. Yes. Thank you for coming. Say bye. Take care. Love you.